Hello students, as you know that our school is not going on and you are still at home due to this corona pandemic lockdown. So today we are going to start a chapter of our political science, that is alternative centers of power. Okay, so today we are going to study about the alternative centers of power. So alternative centers of power का मतलब क्या है? तो as you have studied about the 3 chapters already of political science book 1, that is first one was Cold War era, second one was disintegration of USSR, and third one was hegemony. So from these 3 chapters you have understood about the role played by the powerful countries in the world. So mainly we have studied about 2 powerful countries, that were USSR and US. Now question is कि what we are going to study in this topic about alternative centers of power. So we are trying to find out those countries or organizations which could compete with US. It means that we are going to find out anyone in the world, any organization or any nation which could have potential to compete with US, to compete with US economy, to compete with US in all the fields. Do we have all those alternatives? Do we have that alternative or not? Okay, so in this chapter we are going to discuss about those alternatives. As you know that after Second World War, that is after 1945, the Cold War started in the world. Okay, then so when the Cold War started, the world was divided into 2 camps. First one was camp which was led by Soviet Union, and second one was the camp which was led by US. The camp led by Soviet Union, they made a military alliance which was called Warsaw Pact, and the camp led by US, they made military alliance called NATO. So we can say that after 1945 the world had 2 big superpowers till 1991. So till 1991, it means, why I am using this year 1991, because till 1991 there were 2 superpowers, one was USA and one was USSR, but after 1991 or in 1991 USSR got disintegrated into 15 countries. So the world became unipolar. Okay, so actually after the disintegration of USSR there were many kind of guessworks that were prevailing all over the world, that whether the world will become unipolar or world will become multipolar. But in fact it happened that the world become unipolar. It means after 1991 there is only one superpower which is leading all over the world, which is leading the whole world, that is called US. And okay, and also it started US hegemony all over the world. Now if you want to know, if you have already studied that what is hegemony, so you know that there is hegemony means dominance of a nation over other countries in each and every field, that no other countries could compete with the hegemon. And in current scenario there is only one hegemon, which is called US. Okay, so in this chapter we will try to find out whether there is any other country which can compete with or which can become threat to US in economic and militarily power, or which could limit the US dominance. So we will try to find out.
Okay, so as you have understood, we will talk about we will talk about three alternatives. These three alternatives we are going to study in this chapter. The first one is European Union, the second one is ASEAN, and the third one is China. Okay, so in current, first two are the organizations which are created by different countries, like European Union, which was created by the countries in the Europe, and second one is ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nations. Okay, so these two are organization, and third one is China. China is a country which is developing very fastly, or you can call it it is the only country in the world which could replace US or could challenge the hegemony of US. So China is developing in that speed that very soon it is said that very soon China will take over US. Okay, so we will talk about these three countries or organizations which have potential to limit American dominance. First of all, we will talk about European Union. Okay, so now first of all we have to understand what is European Union. Okay, so European Union was established in 1992. As you can see, European Union was established in 1992 after the disintegration of USSR. But it doesn't mean that US just got its creation suddenly after the disintegration of USSR. Its formation lies back in 1945. So it means its roots of the formation of US lies in 1945. As you all know that Second World War made all the European states from debtor to creditor. I mean to say that कि देने वाले यूरोपियंस थे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को लेने वाला बना दिया. मतलब उनको दुनिया से डेप्ट लेने पड़ा, क्योंकि उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हिट हुई, इतनी ज़्यादा वो लोग परेशान हुए और उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बर्बाद हुई कि वो सडनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा इकोनॉमिकली, और जिसकी वजह से वो काफ़ी पिछड़ गए. ठीक है, और this second world war, as you can see here, second world war, all European states confronted the ruin of their economy and all of those structures destroyed that very foundation of Europe. तो इससे आपको समझ में आता है कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनकी इकोनॉमी ही बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उनकी फाउंडेशन भी बर्बाद हो गई थी. तो यहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे, और यहीं से आपकी रूट्स बनती है, जिससे जो कि भविष्य में जाकर यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन बनकर कैसे तैयार हुआ है. तो यूरोपियन यूनियन जो है, इसकी शुरुआत होती है एक स्टेप के द्वारा, जो स्टेप लिया गया था 1945 में यूएस ने यूरोप को कर्ज से बाहर निकालने के लिए, उनकी इकोनॉमी की बर्बादी से उनको बाहर निकालने के लिए यूएस ने उनको एक हेल्प करने की कोशिश की थी इन द फॉर्म ऑफ मार्शल प्लान. ओके, कैसे हेल्प करने की कोशिश की थी? इन द फॉर्म ऑफ मार्शल प्लान. ठीक है, ये मार्शल प्लान जो है, इसको सर जॉर्ज मार्शल ने क्रिएट किया था, और इसे हम यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहते हैं. ओके, ये आपको याद रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं? यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहते हैं. ये मार्शल प्लान जॉर्ज मार्शल ने प्रिपेयर किया था
यूएस में, और यूएस ने इसके ज़रिए यूरोप को बाहर निकालने की कोशिश की, उनके आर्थिक बैकवर्डनेस मतलब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से उनको बाहर निकालने की कोशिश की थी। ये मार्शल प्लान बनकर तैयार हुआ था 1948 में, और इसमें $15 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट यूरोप को दिया गया था कि यूरोप अपने आप को फाइनेंशियली रिबिल्ड कर सके। सो आर यू गेटिंग इट? अकॉर्डिंग टू दिस मार्शल प्लान, यूरोप वाज गिवन $15 बिलियन हेल्प बाय यूएस टू रीबिल्ड देयर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. Okay, so this is the importance of Marshall Plan, which played a very important role in the development of Europe after Second World War. Now we will talk about what are the aims of this Marshall Plan. So first aim of the Marshall Plan was to reconstruct cities, industries and infrastructure that were heavily damaged during Second World War. ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या था. इसका मेन उद्देश्य ये था कि यूरोप के अंदर जितनी भी सिटीज़ बर्बाद हुई हैं उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना, इंडस्ट्रीज़ जो बर्बाद हुई हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना, और यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरीके से बर्बाद हो गए थे. इसका दूसरा एम था टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स बिटवीन यूरोपियन नेबर एंड यूएस और यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ है उनके बीच में जितनी भी देशों में जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको खोलना. ट्रेड बैरियर्स के बारे में आप जानते हो कि व्हाट डज ट्रेड बैरियर मीन्स. ट्रेड बैरियर मीन्स रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे जो ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती है या उनके ऊपर जो नियम कायदे लगाए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को रोकने का काम करते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, उनको रिमूव कर दिया गया. और ये सिर्फ किन देशों के बीच में? यूरोपियन देशों के बीच में और यूएस के बीच में. जो ये ट्रेडिंग था इसको बुरी तरीके से रोक दिया गया. ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए. इट वॉज आल्सो एम टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ठीक है, देखो अब एक बात तो आप लोग जानते हैं कि जब हम कोल्ड वार की बात कर रहे थे, इट मीन्स व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कोल्ड वार, सो देयर वाज, यू नो वेरी वेल दैट दिस कोल्ड वार वाज नॉट ओनली ए राइवलरी बट इट वाज आल्सो एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. ये आप लोगों को पता था, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यूएस की बात करते हैं तो यूएस की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, जबकि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो है वो व्हाट वी कॉल इट सोशलिज्म या कम्युनिज्म पर बेस्ड थी. तो कहीं ना कहीं यूएस कम्युनिज्म और सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं करता था. तो दैट इज़ वाई उसने इस चीज़ को मार्शल प्लान में भी इंश्योर किया कि वो जिस भी कंट्री की हेल्प करेगा वो कंट्रीज़ कभी भी कम्युनिज्म को फैलने में या अपने देश में प्रोड्यूस हो, अपने देश में आगे बढ़ने में या दूसरे देशों में बढ़ने में कभी भी मदद नहीं करेंगे, और वो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म को बढ़ावा मिले. तो ये इन्होंने इंश्योर किया इसमें मार्शल प्लान के अंदर. ठीक है, अंडर दिस प्लान यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अंडर नाटो. इस मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग ही यूएस ने क्या किया? नाटो को तैयार किया, क्योंकि यूएस चाहता था कि यूएसएसआर के अगेंस्ट उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो, उसकी एक बहुत बड़ी आर्मी बनकर तैयार हो और वो एक प्रकार से सुप्रीम लीडर की तरह रोल प्ले करे. तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब मैक्सिमम कंट्रीज उसके फेवर में आए. तो उन्होंने कोशिश किया कि जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सारी की सारी उन्होंने अपने फेवर में ली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इस तरीके से उन्होंने एक नाटो बनाया. नाटो का मतलब होता है, एज यू कैन सी, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये नाटो बनाया गया जिसके अंदर जितने भी यूएस के एलाइज थे उन सबको इसका पार्ट बनाया गया. और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि नाटो का एक एम ये था कि अगर किसी भी नाटो देश के ऊपर हमला होता है तो ये जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं वो सब उस हमले को अपने ऊपर हमला समझेंगे और एक साथ रिटेलिएट करेंगे. ठीक है, तो एक प्रकार की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है. ठीक है,
इसके अलावा इस प्लान में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई जिसे कहा गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या कहा गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में OEEC कहा जाता है। ठीक है, ये कॉरपोरेशन का उद्देश्य क्या था मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग कि ये कॉरपोरेशन जो है जितने भी यूरोपियन स्टेट्स हैं उन यूरोपियन स्टेट्स को फाइनेंशियल पॉलिटिकल जो भी हेल्प या एड चाहिए वो एड चैनलाइज करेंगी। मतलब इस एड को चैनलाइज या हेल्प को चैनलाइज करने के उद्देश्य से ये OEEC बनाया गया था। ठीक है, और इस OEEC के हेल्प से यूरोपियन स्टेट्स जो थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना शुरू किया ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ पर। मतलब कुल मिलाकर इस OEEC को चैनलाइज इस तरीके से करना था कि ये कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सके। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर सके ये, और कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ जितने भी यूरोपियन स्टेप्स है उन यूरोपियन स्टेट्स को ये OEEC जो है उनके ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करने में उनके कोऑपरेशन लाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि मार्शल प्लान वो एक इनिशियल स्टेप था जो कि EU की फॉर्मेशन के जड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? EU के फॉर्मेशन की जड़ों में जाता है। मतलब अगर आप कहते हो कि 1992 में यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार हुआ तो इट इज़ राइट, यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यूरोपियन यूनियन जब 1992 में बनकर तैयार हुआ तो वो ऐसा नहीं था कि अचानक 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद एकदम से कुछ हो गया। नहीं, इट वाज ए चेन ऑफ इवेंट्स, और ये चेन ऑफ इवेंट्स जो है इसकी जड़ें बहुत पीछे जाती है, दैट इज़ 1945। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार हो गया, कि एक साल में उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई और यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक हो गई। नहीं, यूरोपियन यूनियन बनने की जड़ें जाती है 1945 में, दैट इज़ द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। वहाँ से जड़ें शुरू होती है, जो कि हम स्टेप्स पढ़ चुके हैं मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग कि ये वो कुछ स्टेप्स थे जो कि लिए गए थे यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने के लिए जो पहला पॉलिटिकल स्टेप लिया गया था वो लिया गया था 1949 में, जब काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया था। क्या बनाया गया था? काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया था, जो कि इन सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में क्या करेगा? पॉलिटिकल कोऑपरेशन तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? पॉलिटिकल कोऑपरेशन तैयार करेगा। मतलब फाइनेंशियल हेल्प तो आपस में होगी, लेकिन पॉलिटिकल कोऑपरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता चला गया, जिसकी वजह से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनकर तैयार हुई 1957 में। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अब हम टाइमलाइन की तरफ जाएंगे। इन टाइमलाइन को आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन स्टेट्स के बनने की शुरुआत, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ, 1945 में जाती है। 1945 के बाद फिर हम आते हैं 1949 में। 1949 में क्या हुआ था? 1949 में यूरोप बना था। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप बना था, जो कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन बनाने का काम करता। फिर उसके बाद यूरोपियन स्टेट्स जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाती है कि वो आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको कि यूरोपियन कम्युनिटी 1957 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ द टाइमलाइन, और इन टाइमलाइंस में भी आप जैसे पढ़ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था 1945 में, तो यहाँ आपको दे रखा है। एक बार फिर मैं आपको बताया, जैसे 1951 अप्रैल में जो 6 यूरोपियन कंट्रीज़ होती है, जिनमें फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब आपस में मिलकर क्या करती है?
ट्रिटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं, मतलब आपस में मिलकर ये एक संधि करते हैं या आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट ये पेरिस में साइन करते हैं, इसलिए इसको ट्रिटी ऑफ पेरिस कहा गया। और इस पेरिस ट्रिटी के अकॉर्डिंग ये लोग यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, मतलब यहाँ पर देखो ये एक इकोनॉमिक कम्युनिटी ये लोग बना लेते हैं जो कि कोल और स्टील से रिलेटेड कम्युनिटी होगी, जो कोल और स्टील के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर काम करेगी। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद क्या होता है कि 1957 मार्च 25 को ये 6 कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में फिर से एक और ट्रिटी साइन करते हैं, दैट इज़ ट्रिटीज़ ऑफ रोम। कौन सी ट्रिटी? ट्रिटी ऑफ रोम, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1957 में ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, तो ये ट्रिटी ऑफ रोम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मतलब इसके लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बनाने के लिए ये लोग ट्रिटी ऑफ रोम साइन करते हैं। और इसके अलावा ये यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसे यूरेटॉम भी कहा जाता है, इसका भी ये इसी ईयर में एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन 1957 में बना नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स किस तरीके से आगे जाकर यूरोपियन यूनियन बनाकर तैयार करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 1973 जनवरी में, जब डेनमार्क, आयरलैंड और यूके, ठीक है, ये यूरोपियन कम्युनिटी किसको ज्वाइन करते हैं? ये ईईसी जो बनी थी 1957 में, इसको ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1979 जून में यूरोपियन पार्लियामेंट का पहला डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जितनी कम्युनिटी बनी हुई है ये आपस में एक पार्लियामेंट बनाती है और इसके लिए इलेक्शन कराती है। ये आपको डेट याद रखनी है, ये 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकती है। इसके बाद फिर 1981 जनवरी में ग्रीस ज्वाइन कर लेता है यूरोपियन कम्युनिटी। अभी देख लो आप, अभी यहाँ पर ईसी लिखा हुआ आ रहा है, अभी आपको यहाँ पर ईयू लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि ईयू बना था 1992 में, अभी हम ईसी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर 1985 जून में क्या होता है कि शेजेन एग्रीमेंट होता है। मतलब शेजेन एक जगह है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है इन सारे देशों के बीच में, ये जितने भी अभी तक मेंबर बन चुके हैं। और ये सारे देश क्या करते हैं? एबॉलिशेस बॉर्डर कंट्रोल्स अमॉन्ग द ईसी मेंबर्स, कि यूरोपियन कम्युनिटी के जितने भी देश हैं, जिनके नाम अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जिनमें आपका फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। इसके अलावा बाद में जो डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, ठीक है, ग्रीस, ये जितने भी देश हैं ये आपस में ये डिसाइड करते हैं कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। मतलब ये आसानी से एक दूसरे के बॉर्डर्स में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर पासपोर्ट का कंट्रोल नहीं होगा, ये अपनी विश से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं यहाँ के लोग। फिर 1986 जनवरी में एक और नया स्टेप होता है, जब स्पेन और पोर्तुगल भी यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एक सबसे बड़ा स्टेप होता है 1990 में, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम 1992 फरवरी 7 में। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब हम आ चुके हैं यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल बनने वाले ईयर में, दैट इज़ फरवरी 7, 1992, ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि ट्रिटी ऑफ maastricht साइन होती है, ठीक है। और इस ट्रिटी ऑफ maastricht के अंदर क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन बनी तो है फरवरी 7, 1992 में, लेकिन इसका इफ़ेक्ट, यूरोपियन यूनियन का जो इफ़ेक्टिव ये हुआ था 1 नवंबर 1993 से। मतलब ऑफिशियली ये बन तो गया था, लेकिन इनका पूरी तरीके से ऑफिशियली वर्किंग इन्होंने स्टार्ट कब से की है? 1 नवंबर 1993 से, ठीक है। तो जनवरी 1993 में, जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव होने के बाद जनवरी 1993 में क्या होता है कि एक सिंगल मार्केट बनाते हैं। फिर 1995 में कुछ और मेंबर ज्वाइन होते हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये भी ज्वाइन करते हैं। और फिर 2002 आता है, जब ये लोग आपस में क्या करते हैं, एक करेंसी, अपनी एक कॉमन करेंसी बनाते हैं जिसका नाम है यूरो, ठीक है। और ये करेंसी 12 यूरोपियन मेंबर्स, जितने मेंबर्स थे उनमें ये
ये करेंसी यूज़ होना शुरू हो जाती है, मतलब इन सब के बीच में भी कॉमन करेंसी यूज़ होगी। इसके अलावा फिर 2004 मई में इसमें कुछ और नए मेंबर जुड़ते हैं, जिनमें साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगेरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेनिया, ये सारे यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखते चले जाते हैं कि यूरोप की कंट्रीज़ की मेंबरशिप बढ़ती चली जाती है। फिर 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया भी ज्वाइन करता है यूरोपियन यूनियन में, और स्लोवेनिया जो है यूरो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर 2009 में लिस्बन ट्रीटी होती है, ठीक है, 2009 में लिस्बन ट्रीटी होती है। इस लिस्बन ट्रीटी के बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। फिर 2012 में इनकी अपने प्रयासों के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलती है। फिर इसका 28वां मेंबर 2013 में बनता है, जो कि है क्रोएशिया। और फिर 2016 में ब्रिटिश जो यूके है वो डिसाइड करता है कि वो बाहर निकल जाएगा यूरोपियन यूनियन से। तो वहाँ पर रेफरेंडम होता है। एज यू नो व्हाट इज़ रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जब आपके देश में आपके देश की पब्लिक को एक ऑप्शन दिया जाता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करना है, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करने के लिए पब्लिक से पूछा जाता है कि येस या नो हो सकता है। या जैसे इनसे पूछा गया था ब्रिटिश लोगों से कि क्या वो चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन में रहें या हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएं। तो 51.9% वोटर्स ने ये डिसाइड किया कि ब्रिटेन जो है वो एग्ज़िट हो जाए यूरोपियन यूनियन से। तो 10 अभी तक, फिर इसके बाद ये यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन निकलने वाला एक मेंबर बन चुका है। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि भाई किस तरीके से आपका जो है ये यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की बात करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से फिर यूरोपियन यूनियन ने अपने काम किस तरीके से किया, यूरोपियन यूनियन कैसे वो धीरे धीरे जो है एक पॉलिटिकल यूनियन बनना शुरू हो गया, कैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसका कैसे बढ़ता चला गया, ठीक है। लेकिन हम उसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो इस तरीके से हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने आपको यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन के बारे में समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम आपको नेक्स्ट डिटेल आई विल गिव यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।